Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also. That will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 2 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल अफेयर्स की। इसमें हम बात करेंगे 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की। कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ। 20 से लेके 28 नवंबर तक हमने इसको ऑब्जर्व किया। राइट, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है? एक तो ये 54th एडिशन है। दूसरा याद रखना है कि ये कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। राइट, किसके द्वारा कराया गया था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, ये भी याद रखेंगे। NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अलॉन्ग विद ESG इन्वायरमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ गोवा के अंडर आती है, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। करेक्ट। एंड गोवा की बात करें तो 37वें नेशनल गेम्स भी यहीं पर हुए थे, एंड महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया था। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे, इस इवेंट के दौरान, इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान, जो कि 54th एडिशन था, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया 17th एडिशन ऑफ द फिल्म बाजार, एज वेल एज VFX एंड टेक पवेलियन को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। और इसी के साथ साथ एक चैलेंज भी लॉन्च किया गया, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। तो 3 चीज़ हो गई, 17वां एडिशन ऑफ द फिल्म बाजार, VFX एंड टेक पवेलियन एंड 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। ये चैलेंज को यहाँ पे लॉन्च किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, माधुरी दीक्षित जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं एंड काफ़ी फेमस इंडियन एक्ट्रेस हैं, इनको यहाँ पे ऑनर किया गया विद स्पेशल रिकॉग्निशन टू भारतीय सिनेमा अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि आपकी आर्मी से रिलेटेड हो, एयरफोर्स से रिलेटेड हो, या इंडियन नेवी से रिलेटेड हो, या फिर वो इंडियन नेवी की, जैसे अगर हम बात करें प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड इंडियन नेवी को दिया गया था। जो सबसे पहला प्रेसिडेंट कलर अवार्ड था इंडियन नेवी को दिया गया था। राइट, एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे 1951 में दिया गया था बाय देन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी। अब देखो, ये प्रेसिडेंट का कलर अवार्ड क्या होता है? जिन्होंने अपना सर्विस दिया हो टू इंडिया। राइट, ये काफ़ी टाइम तक उन्होंने सर्विस किया हो टू इंडिया की, जैसे जो फोर्सेज होते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको इंडियन नेवल शिप्स को दे सकते हैं, किसी बटालियन को दे सकते हैं, किसी एयरक्राफ्ट को दे सकते हैं। राइट, जिन्होंने अपनी सर्विस दी हो टू इंडिया। राइट, तो अभी रिसेंटली याद रखेंगे, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एट पुणे महाराष्ट्र, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से। किसके द्वारा दिया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। राइट, मार्क करेंगे। एंड टू कमेमोरेट द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस प्लेटिनम जुबली ईयर, इनके द्वारा यहाँ पर एक कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ 75 रुपीज़ ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और इनॉग्रेट की, वो है प्राजना। ये क्या है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑल्सो इनॉग्रेटेड द आर्म्ड फोर्सेस सेंटर फॉर कॉम्पिटिशनल मेडिसिन, जो कि है प्राजना। ये चीज़ भी यहाँ पे इनके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया
टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2023 इस लिस्ट को रिलीज़ किया गया कि मिलेनियम जो कि 2000 के बाद यहाँ पे जो सेल्फ मेड मिलेनियर्स हैं उनकी यहाँ पे बात की जाएगी। एंड टॉप 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज को इसमें लिस्ट किया गया था, उनको जो फाउंड किया गया। फिर यहाँ पे याद रखेंगे इस लिस्ट को टॉप किसने किया गया, डी मार्ट के ओनर राधा कृष्णन दमानी जी के द्वारा इसको टॉप किया गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनकी जो नेट वैल्यू निकल के आई वो है 2.38 लाख करोड़ रुपीस, राइट। तो राधा कृष्णन एस दमानी जी जो कि फाउंडर हैं एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड डी मार्ट के, इन्होंने टॉप किया। पहला एडिशन था इसका, या फिर हम बोले इनॉग्रल एडिशन था, इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2023 की लिस्ट। ये रिलीज की गई फर्स्ट प्राइवेट जो कि है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड ह्यूरन इंडिया के द्वारा मिलकर, राइट। यहीं पे देखेंगे जो ये लिस्ट है ये क्या है, 200 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की इन इंडिया फाउंडेड आफ्टर द मिलेनियम ईयर 2000। एंड ये कंप्राइज करती है 405 फाउंडर्स की लिस्ट को। एंड इसमें से टॉप किसने किया है, वो किया है राधा कृष्णन दमानी जी के द्वारा। ह्यूरन इंडिया की बात करें तो अनास रहमान जुनैद इन्होंने टॉप किया है, और सॉरी ये यहाँ के फाउंडर रहेंगे ह्यूरन इंडिया के। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, इसको एस्टैब्लिश किया गया 2012 में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे, वी वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। एंड इसको एस्टैब्लिश किया गया 2018 में। टैगलाइन क्या रहेगी, ऑलवेज यू फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी एक एओन एक्सेप्ट किया है। एओएन क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। हम जानते हैं हम आत्मनिर्भर भारत के अंडर इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर है उसको हम ग्रो करेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो, जो भी नए इक्विपमेंट हमें प्रोक्योर करने हैं, या फिर जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी के लिए, वो हम इंडिया में ही बनाएं, राइट। उनको अगर हमें अपग्रेड करना है तो वो भी हम इंडिया में ही करें। इससे क्या होगा, जो पैसा है इंडिया का इंडिया में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, राइट। तो इसी के लिए अभी डीएसी ने अप्रूव किया प्रपोजल वर्थ 2.23 लाख करोड़ रुपीस के एओएन के लिए फॉर आर्म्ड फोर्सेस। अब इसके अंदर हम देखेंगे जो 98% ऑफ द टोटल एओएन अमाउंट है ना, जो कि है 2.2 लाख करोड़ रुपए, वो क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ही दिया जाएगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से ही प्रोक्योरमेंट की जाएगी एंड उन्हीं पे भी ये पैसा खर्च किया जाएगा, करेक्ट, ताकि इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, राइट। और ये किस लिए, कि सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने के लिए, इंडियन डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत होने के लिए ये लॉन्च किया गया। फिर इसमें से देखेंगे हम डीएसी ने अप्रूव किया procurement of defense equipment worth 1.5 lakh crore rupees such as your 97 new LCA Mark 1 fighter aircraft की and indigenous upgrade of 84 Sukhoi 30 Mark 1 combat planes के procure यहाँ पे किए जाने की बात की गई। नेक्स्ट यहीं पे याद रखेंगे एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि मणिपुर में पीस ट्रीटी हो सके, मतलब पीस फैलाया जा सके, राइट। और हम जानते हैं मणिपुर में मैती और कुकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अभी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशंस की हम यहाँ बात करेंगे। एक तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, और तीसरा है यूएनएलएफ जो कि है यूनाइटेड नेशनल लिबरल फ्रंट। इन तीनों के बीच में यहाँ पर एक परमानेंट पीस सेटअप करने की बात की गई इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, स्पेशली मणिपुर में। एंड जो हम ये बात कर रहे हैं ना यूएनएलएफ की, यूनाइटेड नेशन लिबरल फ्रंट की, इसमें याद रखेंगे 400 से 500 आपके आर्म्ड रिबेल्स मेंबर्स हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ दिम इन दिस कम्युनिटी, जो ये 400 से 500 आर्म्ड रिबल मेंबर्स हैं, इसमें मेती कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं। 1964 में ये आपका यूएनएलएफ को इस्टेब्लिश करा गया था, राइट। और ये ओल्डेस्ट एंड द पहला वैली बेस्ड आर्म्ड ग्रुप है जो कि मणिपुर में है, राइट। और इन सब के बीच में यहाँ पे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि पीस इस्टेब्लिश किया जा सके इन मणिपुर। नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, फिर यूनिसेफ के द्वारा अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, क्योंकि हम जानते हैं 1 दिसंबर को हमने एड्स डे ऑब्जर्व किया था, राइट। तो इन्हीं के द्वारा एक अभी रिपोर्ट आई कि अगर हम वर्ल्ड में देखें 2022 में तो 98,000 एडोलसेंट गर्ल्स जो कि 10 से 19 साल के बीच में है, ये HIV की शिकार हुई। जिसके हिसाब से अगर देखें तो हर हफ्ते 19,000 केसेस हमें और 1900 केसेस देखने को मिले ऑफ HIV, न्यू इन्फेक्शन HIV के देखने को मिले इन एडोलसेंट गर्ल्स। और 98,000 2022 में अलोन टोटल इतना 98,000 एडोलसेंट गर्ल्स के केसेस हमें देखने को मिले जो कि 10 से 19 साल के बीच में है, राइट। और ये कब पब्लिश की गई, अहेड ऑफ 1 दिसंबर, जो कि एड्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV वायरस से ही होता है, यह ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इससे क्या होता है कि जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, वो वर्क करना कम कर देते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो छोटा से छोटा इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हैवी टोल देके जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स।
तो अभी रिसेंटली याद रखेंगे हमने देखा किया है यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट रिलीज की, ग्लोबल स्नैपशॉट ऑन HIV एंड एड्स प्रोग्रेस एंड प्रायोरिटीज फॉर चिल्ड्रन एडोलसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वीमेन, और इसके ऊपर यहाँ पे ये डाटा पब्लिश किया गया। फिर आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। तो अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया जिसका नाम रहेगा water.org। ये क्या है, बेसिकली आप इसको एक NGO कह सकते हैं जो कि क्लीन एंड हाइजीनिक सिचुएशंस को, वाटर सैनिटेशन को प्रमोट करने का काम करती है, ताकि लोगों को ग्लोबली हम साफ पानी दे सके पीने के लिए, उनके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हम पानी प्रोवाइड करा सकें, राइट। और यहाँ पे ये जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनके साथ क्यों टाइप किया, क्योंकि यहाँ पे ये लोन प्रोवाइड करेंगे 6,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक का यहाँ पे इनको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि ये अपने जो भी एग्जिस्टिंग या फिर उनको नया एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करना हो या फिर अपना नया कंस्ट्रक्ट करना हो वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, उसके लिए ये 1 लाख रुपये तक का अमाउंट स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा एज अ लोन। ठीक है, फिर यहीं पे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, जो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ये तो हमने देख लिया 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेगा। दे विल ऑल्सो ऑफर अफोर्डेबल लोन्स ओवर द नेक्स्ट 3 years एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक विल प्रोवाइड 65,000 हाउस होल्ड्स विद एक्सेस टू क्लीन हाइजीनिक सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड ड्रिंकिंग वाटर। इस लोन की मदद से उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, राइट। साफ पानी मिलेगा, हाइजीन अच्छा मेंटेन होगा, तो वो बीमारियों से भी बचे रहेंगे, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट, फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, इतीरा डेविस। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में, 2007 में ये इस्टेब्लिश करा गया था। water.org की बात करें तो ये क्या है, ये एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वर्किंग टू ब्रिंग वाटर एंड सैनिटेशन टू द वर्ल्ड। को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, गैरी वाइट। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, कैंसस मिसिसूरी USA में, एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। नेक्स्ट, फेडरल बैंक एंड NEML इन्होंने टाई अप किया टू स्ट्रीमलाइन ई प्रोक्योरमेंट ई ऑक्शन। अब देखो ये क्या बात कर रहे हैं, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं जो आपके फार्मर्स होते हैं, राइट, वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहें तो वो अब NEML पर, इनके पोर्टल पर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड गवर्नमेंट इनको MSP पे बाय कर लेगी या फिर कोई दूसरा इंडस्ट्री का मार्केट प्लेयर बिडिंग करके, बोली लगाकर यहाँ पर इस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स ने व्हीट को लिस्ट किया, या तो व्हीट को गवर्नमेंट MSP पे बाय कर लेगी, या फिर दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर आएगा एंड वहाँ पे बिडिंग लगाएगा कि मान लो 100 kg यहाँ पे इनके पास गेहूँ है किसी के पास, तो 100 kg के एक प्लेयर बोल रहा है कि भाई हम X अमाउंट दे देंगे, दूसरा बोला Y अमाउंट ले लेंगे, तीसरा बोला Z अमाउंट ले लेंगे, तो जिसका ज़्यादा अमाउंट होगा उस पर ये व्हीट को बेच दिया जाएगा। ये होती है आपकी बिडिंग लगाना, ई ऑक्शन करना, बोली लगाना, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होंगे और इसके लिए जो पेमेंट प्रोसेस होगा वो फेडरल बैंक की जिम्मेदारी होगी, उसको सेफ एंड पेमेंट को प्रोसेस कराने का जो जिम्मा होगा वो फेडरल बैंक का होगा। तो यही यहाँ पे MOU साइन हुआ कि फेडरल बैंक ने NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड के साथ ये एक MOU साइन किया ताकि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके, ई प्रोक्योरमेंट एंड ई ऑक्शन सिस्टम को यहाँ पे इंटीग्रेट करा जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं GDP की बात करते हैं। इंडिया ने GDP ग्रोथ रेट जो सेकेंड क्वार्टर की रही फॉर फिस्कल ईयर 24 कितनी है, 7.6% की। यही अगर मैं सेकेंड क्वार्टर की बात करूँ फॉर फिस्कल ईयर 23 वो थी 6.3% की। तो हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, राइट। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इस डाटा को रिलीज़ किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं फिर कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड, इनके द्वारा अभी 3 नए शिप्स को लॉन्च किया गया है, राइट, ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ये 3 नए शिप्स रहेंगे, INS माही, INS मलवान एंड INS मंगरोल, राइट। कोची केरला में इनको लॉन्च किया गया एंड ये डिलीवर किए जाएंगे टू इंडियन नेवी। तो ये 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट रहेंगे, राइट, एंड इन तीनों को अभी डिलीवर किया जाएगा तो इंडियन नेवी। बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा, डिलीवर किया जाएगा कोची यार्ड में जो कि केरला में है टू इंडियन नेवी। नेक्स्ट बात करते हैं, हम जानते हैं स्पेस की रेस में हर कंट्री आगे बढ़ना चाहता है, राइट। नई नई टेक्नोलॉजी वो डेवलप करना चाहते हैं, नई नई सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करना चाहते हैं ताकि उससे हमारा जो अर्थ है
हमारी अर्थ को मॉनिटर कर सकें, एटमॉस्फेयर को मॉनिटर कर सकते हैं, क्लाइमेट को मॉनिटर कर सकें, एंड जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम मॉनिटर कर सकें, क्लाइमेट चेंज का डाटा हम फार्मर्स को प्रोवाइड करा सकें, एंड जो क्लाइमेट चेंज में डिफरेंस आ रहा है हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, एंड उस पर जो इफेक्ट है उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम हर कंट्री कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रही है। तो अभी रिसेंटली टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि एक लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, इन्होंने पार्टनरशिप की स्टेलोलॉजिक इनकॉर्पोरेशन के साथ, राइट, जो कि एक सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्शन कंपनी है। तो ये अर्थ को ऑब्जर्व करती है। तो टाटा एडवांस सिस्टम्स सिस्टम ने पार्टनर किया स्टेलोलॉजिक के साथ ताकि अर्थ ऑब्जर्वेशन पे काम किया जा सके, एंड इन्होंने एक सैटेलाइट असेंबली इंटीग्रेशन टेस्ट को लॉन्च किया इन कर्नाटका, राइट। इससे क्या होगा, अलग अलग सैटेलाइट्स को हम स्पेस में भेजेंगे, इंडिया को मॉनिटर करेंगे, इंडिया के ऊपर जो वेदर है उसको मॉनिटर कर सकेंगे, इंडिया के ऊपर जो चेंज आ रहा है क्लाइमेट में उसको मॉनिटर कर सकेंगे, उस क्लाइमेट के डाटा को हम फार्मर्स को भेज सकेंगे ताकि वो उसके बेसिस पे डिसीजंस ले सके, राइट। एंड इससे हम काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन पर, ठीक है। और ये सैटेलाइट का टाई अप किसके द्वारा हुआ, टाटा एडवांस सिस्टम ने पार्टनर किया स्टेलोलॉजिक के साथ ताकि इसके ऊपर रिसर्च किया जा सके स्पेस से, राइट। और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और जो पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च की जाएगी वो है TSAT-1A, और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड एड्स डे पर। 1 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1 दिसंबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट एड्स, करेक्ट। एंड रेड रिबन आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, रेड रिबन इसका सिंबल रहेगा HIV वायरस का, राइट है, एड्स का, ठीक है। फिर 2023 में इसकी 35वीं एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी वर्ल्ड एड्स डे की, और इसकी थीम रहेगी लेट कम्युनिटीज लीड। आई रिपीट, थीम क्या रहेगी, लेट कम्युनिटीज लीड, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड एड डे की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 59th रेजिंग डे ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। BSF क्या, जो हमारी बॉर्डर पे जो फोर्स है जो इंडिया को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ऑल द अपकमिंग थ्रेट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर डिफरेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इवन हम चाइना की बात करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है बॉर्डर पर, तो इनसे जो हमें प्रोटेक्ट करता है ना वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। एंड इस बार हमने 1 दिसंबर 2023 में हमने कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया, 59th एडिशन ऑब्जर्व किया, रेजिंग डे ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। 59th एडिशन है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं स्टेट न्यूज़। तो अभी रिसेंटली वीरा राणा, ये वो सेकंड वीमेन बनी है जिन्होंने एडिशनल चार्ज संभाला एज द चीफ सेक्रेटरी, या फिर चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट संभाली है मध्य प्रदेश में। तो ये सेकंड वीमेन बन गई हैं इन हिस्ट्री जिन्होंने मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट संभाली। पहली थी निर्मला बक, ये फर्स्ट वीमेन थी चीफ सेक्रेटरी जो बनी थी मध्य प्रदेश की फ्रॉम 1991 टू 1993। तो वीरा राणा की बात करें तो ये 1988 बैच की IAS ऑफिसर हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश, एंड ये सेकंड वीमेन IAS ऑफिसर बनी है टू बी एलिवेटेड टू द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। वीरा राणा किनको सक्सीड करेंगी, तो ये CS इकबाल सिंह बेंस को सक्सीड करेंगी जो कि 30 नवंबर को रिटायरमेंट हो गई थी, जिनको 2 एक्सटेंशन के बाद, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभी अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड US एम्बेसडर के द्वारा जो कि है एरिक गारसेटी, इन दोनों के द्वारा मिलकर द हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम को अभी इनॉग्रेट किया गया इन अरुणाचल प्रदेश। और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम है ना, इसको क्यों इनॉग्रेट किया गया है यहाँ पर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1942 से 1945 के बीच में 650 एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्रैश हो गए थे, बिकॉज ये जो रूट था आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत, यूनान एंड म्यांमार, यहाँ से एयरक्राफ्ट जाते थे, एंड 1942 से 1945 के बीच में 650 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी थी, राइट। एंड इसी को वहाँ पे जो भी आपके अलाइड फोर्सेस के जो फॉलन एयरमैन थे उनको ऑनर करने के लिए ही ये आपका हम्प वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया अरुणाचल प्रदेश में, एंड ये सेकंड ऑफ इट्स काइंड म्यूजियम रहेगा एशिया का, राइट। मार्क करके चलेंगे इसको। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ। देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कन्फर किया प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड टू द मेडिकल कॉलेज एट पुणे, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज एट पुणे। देन IDFC फर्स्ट प्राइवेट ह्यूरन इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया, इस लिस्ट को रिलीज किया गया, एंड डी मार्ट के राधा कृष्णन दामानी जी ने यहाँ पे टॉप किया। देन DAC ने अप्रूव किया EON's एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर वेरियस एक्विजिशन प्रपोजल्स वर्थ
2.23 लाख करोड़ टू बूस्ट इंडियन डिफेंस सेक्टर। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड मणिपुर ने साइन किया एक पीस एग्रीमेंट विद यूएनएलएफ। यूनिसेफ ने पब्लिश किया 2023 ग्लोबल स्नैपशॉट ऑन एचआईवी एंड एड्स प्रोग्रेस एंड प्रायोरिटीज, ये रिपोर्ट का नाम रहेगा। देन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया water.org के साथ टू ऑफर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन लोन्स। फेडरल बैंक एंड एनईएमएल इन्होंने टाई अप किया टू स्ट्रीमलाइन ई प्रोक्योरमेंट एंड ई ऑक्शन फैसिलिटी को। देन इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट जो सेकंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24 रही वो है 7.6% एज पर द डाटा रिलीज बाय एनएसओ। सीएसएल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर लॉन्च किए जो कि है माही, मलवान एंड मगरोल, एंड इनको इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। और कहाँ पे इनको लॉन्च किया गया? एट कोची यार्ड। देन टाटा एडवांस सिस्टम पार्टनर करते हैं स्टेलोलॉजिक के साथ ताकि जो लोकल स्पेस टेक कैपेबिलिटीज है ना इंडिया में उनको डेवलप कर सके एंड इंडिया में हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके एंड अर्थ का जो ऑब्जर्वेशन डाटा है हम इंडिया में ही प्रोसेस कर सकें। देन वर्ल्ड एड्स डे की बात करें 1 दिसंबर, 59th रेजिंग डे ऑफ बीएसएफ 1 दिसंबर। वीरा राणा ये क्या बनी है? एडिशनल चार्ज दिया गया इनको चीफ सेक्रेटरी का ऑफ मध्य प्रदेश। एंड अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड यूएस एम्बेसडर इन्होंने मिलकर द हम्प वर्ल्ड वॉर II म्यूजियम को इनॉग्रेट करा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स पर जो आपकी लर्निंग में बहुत बेनिफिट करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम विच एडिशन ऑफ बंगाल ग्लोबल समिट ग्लोबल बिजनेस समिट वाज हेल्ड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, जरा बताओ। तो याद रखेंगे भी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। 7वां एडिशन था इस बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का। 21 एंड 22 नवंबर को ये ऑब्जर्व करा गया था कोलकाता वेस्ट बंगाल में, करेक्ट। और इसका एम क्या था यहाँ पर? ताकि जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, उनको एक साथ लाया जाए एंड आगे हम अपने कैसे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को, बिजनेस को आगे बढ़ा सके इन अ फ्रेंडली स्टेट इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर यहीं पे हम देखेंगे 188 MOUs LOIs साइन किए गए, करेक्ट। एंड ड्यूरिंग दिस 7th एडिशन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी इन्होंने अनाउंस किया कि 3.76 लाख करोड़ की हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस लेटर ऑफ इंटेंट्स एंड MOU। इसी के अलावा हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्लेज किया कि 20,000 करोड़ की हम इन्वेस्ट करेंगे वेस्ट बंगाल में। ITC इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड लॉन्च द ITC मार्स एप्लीकेशन। फिर यहीं पे MOU साइन किया गया बिटवीन NSE एंड वेस्ट बंगाल ताकि फंड रेजिंग कर सके फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। यहीं पे फिर अमेजॉन एंड वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जहाँ दे केम टुगेदर एंड साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक। फिर वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगी? ममता बनर्जी। कैपिटल क्या है? कोलकाता। गवर्नर कौन रहेंगे? CV आनंदा बोस। अगर नेशनल पार्क की बात करूं तो सुंदरवन नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, जलपड़ा नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पे रहेंगे, राइट। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनी, तो कोलकाता में बनी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। किस रिवर के नीचे बनी ये आप मुझे होमवर्क में बताओ, ठीक है। किस रिवर के नीचे, किस रिवर के बेड में हमें पहली अंडर वाटर मेट्रो देखने को मिलती है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। फिर इसी के अलावा अगर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूं मैं, जैसे बताओ अभी रिसेंटली वो पहली वीमेन कौन बनी जिन्होंने स्काई डाइव की फ्रॉम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइव करने वाली वो पहली वीमेन कौन बन गई है? वो है शीतल महाजन। वो कौन है? शीतल महाजन। देन किस कंट्री ने होस्ट किया सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? किसके द्वारा किया गया? हमारी इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया, ठीक। साइट्स 2.0 ये प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देन सनफ्लावर इनिशिएटिव किस एयरपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया सनफ्लावर इनिशिएटिव को, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज सूर्य किरण।
ये हो अभी इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है? सूर्य किरण। तो इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण कंडक्ट कराई जाती है, और इसमें भी याद रखेंगे इनकी आर्मीज के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, फिर ये 24 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज कंटिन्यू होगी, और इस एक्सरसाइज का भी कौन सा एडिशन था? 17th एडिशन हमें देखने को मिला। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पे हुई ये एक्सरसाइज? तो ये इस बार उत्तराखंड में हमें देखने को मिली, इंडिया में। ठीक है, ये तो थी 17वीं एक्सरसाइज। अगर मैं 16वीं की बात करूं तो लोकेशन क्या रहेगी? तो ये नेपाल में हुई थी लास्ट ईयर 2023 में और 2022 में। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया की तरफ से जो बटालियन थी वो है कुमोन रेजिमेंट, 354 पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। एंड नेपाल आर्मी की तरफ से था 334 पर्सनल, जो कि तारादल बटालियन से है। करेक्ट। और याद रखेंगे हर साल इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है 2011 से, मतलब पहली बार फर्स्ट एडिशन बोले या फिर इनॉग्रल एडिशन आपका कब था? 2011 में। चलिए नेक्स्ट, किस कंट्री विच कंट्री बिकेम द चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024? तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैनशिप रहेगी, ये जो एक इंटरनेशनल बॉडी है ऑन शुगर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, इसकी चेयरमैनशिप किस कंट्री के पास रहेगी? तो हमारी इंडिया के पास रहेगी 2024 के लिए, कि शुगर सेक्टर को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड जो ग्लोबली क्या स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे वो अब इंडिया के द्वारा करा जाएगा। राइट। इंडिया में देखें तो यूपी बहुत ज़्यादा फेमस है इन दिस सेक्टर, सबसे ज़्यादा हमें वहीं पे देखने को मिलता है। करेक्ट। एंड यहीं पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर यूपी में जो है, इन्हीं के द्वारा हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने काफ़ी अलग कंट्री के साथ भी कोलैबोरेट किया है, जैसे इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट एंड फिजी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ शुगर प्रोडक्ट्स एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका शुगर प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर कंज्यूमर की बात करें तो 15% शेयर है हमारे पास वर्ल्ड का, और प्रोड्यूसर की बात करें तो हमारे पास 20% रहेगा प्रोडक्शन का। फिर इसी के साथ साथ एक और आ जाता है एथेनॉल ब्लेंडिंग। राइट। और अगर मैं एथेनॉल की बात करूं तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट है इन एथेनॉल प्रोडक्शन, इन एथेनॉल प्रोडक्शन। फिर यहीं पे टॉप पर कौन है? यूएसए, फॉलोड बाय ब्राजील ऑन सेकेंड पोजीशन, एंड थर्ड पे आ जाता है हमारा इंडिया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट केन प्राइस, एंड ये जो अपने फार्मर्स को भी ना एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल अपना शेयर देते हैं हम इंडिया में। ठीक है, जो फार्म करते हैं शुगर प्रोडक्ट्स को, जो शुगर केन को। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडिया ने अभी अचीव किया है 12% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल इन 22-23। यहीं पे हम इसको बढ़ा के कितना करना चाहते हैं? 15% करना चाहते हैं फॉर द ईयर 23-24, मतलब नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच में यही हम 15% तक ले जाने की बात कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। फिर अगर आईएसओ की मैं बात करूं, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, होसे और यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे। इसको इस्टेब्लिश 1937 में किया गया, हेडक्वार्टर लंदन यूके, एंड 88 मेंबर कंट्रीज यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इंडिया ने अज्यूम की चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल शुगर इंडस्ट्री बॉडी आईएसओ, जो कि है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, किस साल के लिए? 2024 के लिए। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे एक दो चीज़ें और मैं पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ, अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा वीमेन लेड स्टार्टअप्स किस सिटी में हमें देखने को मिलते हैं? बेंगलोर में देखने को मिलते हैं, बेंगलुरु में। राइट, वीमेन लेड स्टार्टअप्स बेंगलुरु में हमें देखने को मिलते हैं। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहाँ रहेगा? इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये कहाँ पे है? शिलोंग में, शिलोंग में। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, आई रिपीट, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। राइट, ये एक आपका कैंपेन है, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। सी बकथॉन, राइट, इसको भी जीआई टैग मिला। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? तो ये लद्दाख का प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर पूछा जाए 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। ठीक, फिर 2 डे लॉन्ग ग्लोबल
फिशरीज कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2 दिन लंबी, कहाँ पर हुई? अहमदाबाद में हुई। कहाँ पर? नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट एंड अदर इक्विपमेंट फॉर अराउंड 3000 करोड़ रुपीज। और ये जो 3 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आज सुबह जो वीडियो डली है 3 एंड 4 नवंबर की और 3 एंड 4 दिसंबर की, उसमें ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो सेम होमवर्क क्वेश्चंस हैं आज के लिए, तो इनको भी अटेम्प्ट करना। देन माही, मलवान एंड मंगरोल आर द नेम्स ऑफ प्रोडक्ट्स रिसेंटली लॉन्च। क्या नाम, कौन से प्रोडक्ट्स हैं ये, और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किए गए हैं, और डिलीवर कहाँ किए गए हैं वो भी बताना, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तीसरा, विच इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑन इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.